ICSC Mathematics Class 10 Chapter 11 Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 6. A part: A 10, 5, B 6, -3 and C 2, 1 are the vertices of the triangle ABC. L is the midpoint of AB and M is the midpoint of AC. Write down the coordinate of L and M so that LM is equal to 1/2 of BC. देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एल मीन पहले तो आप ट्राइंगल देख लीजिए ए बी सी. ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 10 और 5, बी का कोऑर्डिनेट 6, -3, सी का कोऑर्डिनेट 2, 1. अभी ए और बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 6 को प्लस करेंगे तो 10 + 6 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8. देखिए 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 8 and 1 आएगा. मतलब L का जो कोऑर्डिनेट है, L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. So similarly for that also the coordinate of M will be 10 + 2 divided by 2, 5 + 1 divided by 2 that is 6, 3 और L का हो गया 8, 1. अब देखिए L M का डिस्टेंस, अब हमारे को कोऑर्डिनेट मालूम है, L और M का कोऑर्डिनेट मालूम है. वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन L M. व्हाट इज द L M डिस्टेंस विल बी 8 - 6. डिस्टेंस फार्मूला लागू करेंगे, रूट ऑफ 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 √4 + 4 एंड स्क्वायर रूट लेंगे तो अब इसको 2√2 लिखा जाएगा. अब देखिए BC का हमें B और C का कोऑर्डिनेट मालूम है. डिस्टेंस फार्मूला से हम BC का लेंथ निकालेंगे. 6 - 2 होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर दैट विल बी द 16 + 16 दैट विल बी अगेन 4√2. अब BC और LM का BC इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखें 2√2 × 2 दैट इज 4√2. 4√2 क्या चीज़ है, BC है. तो BC को ऐसे भी लिखा, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट LM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC. QED, it was to be proved, quod erat demonstrandum. Now the second part of it, the gradient. Write down the equation of a line whose gradient is 3/2 and which passes through the point P that divides the line segment joining the A that is -2, 6 and B 3, -4 in the ratio 2:3. In the ratio 2:3. तो देखिए ग्रेडियंट दिया हुआ है एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट P. एंड व्हाट इज P? P डिवाइड्स द AB इन द रेशियो ऑफ 2:3. AP/PB इज इक्वल टू 2/3. तो हम क्या करेंगे, पहले P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. अब देखिए P का कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकला जाएगा, 3 × -2 प्लस 2 × 3 होल डिवाइडेड बाई 2 + 3. अब ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 × 6 प्लस 2 × -4 होल अपॉन 2 + 3. देखिए 3 × 6, 3 × 6, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा. तो 0 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर देखिए 3 × 6 = 18 and -8
तो 18 minus 8 that is 10. 10 divided by 5 that is 2. So 0, 2. मतलब 0, 2 will be the coordinate of the point P. Now the equation of line passing through 0, 2 and gradient 3 by 2. तो हमारे को इक्वेशन मालूम है y minus y1 is equal to m into x minus x1. देखिए इधर y minus y2, सॉरी y minus y1 that is minus 2, here minus 2 लिख दिया मैंने, इक्वल टू m के जगह पर हमने 3 by 2 लिखा, और x minus x1, तो x हो गया, x1 क्या है, 0 है, यहाँ पर 0. इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y minus 4 is equal to 3x. It means 3x minus 2y plus 4 is equal to 0. And this will be the answer of second part. Now proceed to the question number 7. Find the equation of a line passing through the point minus 2, 3 and having the x-intercept of 4 unit. अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है equation of line AB. It is passing through minus 2 and 3 and intersecting x-axis, so that the intercept on x-axis is 4. So what will be the coordinate of the point B? It will be 4, 0. So the equation of line AB is equal to y minus 3 equal to 0, 0 minus 3 upon 4 minus 2 into x minus 2. So ये आपका हो जाएगा y minus 3, यहाँ पर minus 3/6 हो जाएगा, x plus 2 हो जाएगा, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y minus 6 is equal to minus x minus 2. अब देखिए इधर x plus 2y minus 4, x plus 2y minus 4 will be the equation of the line AB. And this is the answer of A part. Now the B part is A, that is 1, 4, B, 3, 2 and C, 7, 5 are the vertices of a triangle ABC. First part, find the coordinate of the centroid G of the triangle ABC. Equation of the line through G and parallel to AB. ये हमें निकालना है. देखिए यहाँ पर पहले तो ट्राइंगल ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 4, 3, 2, 7, 5. हमें सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या फार्मूला है, सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 plus x2 plus x3 होल डिवाइडेड बाई 3. सो 1 plus 3 plus 7, 1 plus 3 plus 7 divided by 3, 4 plus 2 plus 5, 4 plus 2 plus 5 divided by 3. So 11 by 3, 11 by 3. The coordinate of G means centroid. What is centroid? The concurrent point of medians is known as centroid. Where all the medians of the triangle meets each other, that point is known as centroid, and it divides, the centroid divides the median in the ratio of 2:1. वर्टेक्स के तरफ 2 पार्ट होगा और साइड के तरफ 1 पार्ट होगा. द इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी देखिए ए और बी का हमें कोऑर्डिनेट मालूम है. सो y minus 4 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this will be the 2 minus 4, 2 minus 4 upon 3 minus 1 into x minus 1. So y minus 4 is equal to
y minus 4 is equal to minus 2 by 2 and into x minus 1. अब देखिए y minus 4 is equal to 1 minus x, that will be equal to x plus y minus 5 equal to 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी. x plus y minus 5 is equal to 0. So equation of line LM which is parallel to AB passing through the point 11 by 3 comma 11 by 3 means coordinate of the G, that is 11 by 3 comma 11 by 3. अब हम ये जो दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, हम x और y को एज इट इज रखेंगे पैरेलल लाइन के लिए, और केवल कांस्टेंट के जगह पर हम लेमडा रख देंगे. तो x प्लस वाई प्लस लेमडा विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल एम विच इज पैरेलल टू ए बी. नाउ वी सब्स्टिट्यूट because this LM is parallel to AB and passing through G, so the coordinate of G should satisfy LM. Coordinate of G should satisfy LM equation. So LM equation हमने ये लिखा हुआ है. अब x के जगह पर 11 by 3, y के जगह भी 11 by 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. अब वो लेमडा विल बी इक्वल टू, देखिए दो है 11 by 3 11 by 3, सो 22 by 3 माइनस का आ जाएगा. हमने लिख दिया x प्लस वाई माइनस 22 by 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट द 3x प्लस 3y माइनस 22 इक्वल टू 0. ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा किसका, LM का, विच इज पैरेलल टू लाइन ए बी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. A straight line passes through the point P minus 1 4 and Q 5 2. It intersects the coordinate axis point A and B, and M is the midpoint of the segment AB. Find the equation of the line, the coordinate of A and B, coordinate of M. देखिए पहले तो P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है. P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -1 4. Q का क्या दिया है, 5 -2. अब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, और ये जो x और y एक्सेस है, x एक्सेस और y एक्सेस को A और B पर इंटरसेक्ट करता है. तो ये हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम. पुट, देखिए यहाँ पर क्या है, एब्सिसा 0 होगा, यहाँ पर ऑर्डिनेट 0 होगा. तो पहले हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लें. क्यों, हमारे को P और Q का कोऑर्डिनेट मालूम है. तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 -4 अपॉन x2 minus x1, that is 5 minus -1 into x minus -1. देखिए y minus 4 एज इट इज, -2 -4 that is -6, 5 plus 1 that is 6 कैंसिल, -1 आएगा, और इसको सॉल्व कीजिए तो x plus 1 हो जाएगा. जब हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y minus 4 इज इक्वल टू -x -1. अब इस -x को ट्रांसपोज कर दो सभी चीज़ को, सो x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन. अब x प्लस वाई -3 इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. पुट y इज इक्वल टू 0 इन द एबव इक्वेशन. सो x और y के जगह पर 0 रखो, -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, 0. कोऑर्डिनेट ऑफ b, पुट x इज इक्वल टू 0. In the equation PQ we had 0 plus y minus 3 is equal to 0, that is y is equal to 3. This implies that the coordinate of B is 0, 3. This is the answer.
Now third part, the coordinate of M. What is M? M is the midpoint of AB. So 0 plus 3, देखिए 0 plus 3 divided by 2 or 3 plus 0 divided by 3, that is 3 by 2 and 3 by 2. That is 1.5 and 1.5. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, m का कोऑर्डिनेट जो होगा 1.5, 1.5. Now come to the question number 9. Question number 9 states that Km is a straight line of 13 units. If K has coordinates 2, 5 and M has coordinates x, minus 7, find the possible value of x. Find the possible value of x. अब देखिए यहाँ पर K और M, इधर इस K का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 5, M का कोऑर्डिनेट क्या है x, minus 7 और इसका Km का लेंथ दिया हुआ 13 यूनिट्स. सो डिस्टेंस फार्मूला लागू करेंगे हम. 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर. 13 का स्क्वायर किया 169, इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x. इसका माइनस 7 माइनस 5 को प्लस करेंगे तो माइनस 12 आएगा. माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा. अब इसको पूरा सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. अब देखिए हमने क्या किया, मिडिल पार्ट को स्प्लिट कर दिया. एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 7 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 आएगा. इस तरह से हमने लिख दिया. फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन ले लिया, सिंपल फैक्टराइजेशन जो आप जानते हैं अच्छी तरह से. एक्स बाहर ले लिया, एक्स माइनस 7 प्लस 3 बाहर लिया, एक्स माइनस 7, फिर एक्स माइनस 7 बाहर लिया और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x is equal to 7 and x is equal to minus 3. The possible value of x are 7 or minus 3. Now in the C part there is a triangle PQR, whose vertices are given. देखिए पहले मैंने गलती से सी को पहले कर लिख दिया है क्योंकि ट्रायंगल बना दिया था गलती से पहले. तो पी क्यू आर इन तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, 7 माइनस 2 माइनस 1. अब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ से हमें मीडियन खींचना है. देखिए सी पार्ट में लिखा हुआ है P 3, 4, Q 7 minus 2, B R minus 2 minus 1 are the vertices of the triangle PQR. Write down the equation of the median of the triangle through R. तो हमने पहले मिड पॉइंट निकाला किसका, S. S is the midpoint of PQ. Let so 7 plus 3 divided by 2 minus 2 plus 4 divided by 2, that will be equal to 5, 1. So the equation of median RS जो R से मीडियन जा रहा है उसको हमारे को निकालना है. तो देखिए अब हमारे को दोनों के कोऑर्डिनेट R और S का कोऑर्डिनेट मालूम है. सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2. इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा y प्लस 1 और 2/7 ब्रैकेट में x प्लस 2. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. इसको फर्दर सॉल्व किया, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0. And this is the required answer of the question number C part of the 9.
नाउ द बी पार्ट, देखिए बी पार्ट हमें दिया हुआ पी और क्यू का, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ पी -4 5 क्यू 3 2 और जो विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस एट आर, वाई एक्सेस को आर पॉइंट पर कट करता है। हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पी एम और क्यू से क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। पहले हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ पी क्यू व्हेन 2 लाइन्स और 2 पॉइंट्स आर गिवन मीन्स 5 -5 y -5 is equal to 2 - 5 y2 - y1, so 2 - 5 x2 - x1, that is 3 - -4 into x minus x1, x1 क्या है यहाँ पर -4 है। चलिए y -5 is equal to -3/7 in bracket x plus 4। अब 7 से मल्टीप्लाई किया इधर, 7y -35 is equal to -3x -12। इसको फर्दर सॉल्व किया, 3x plus 7y -23 is equal to 0। अब it passes through the R is a point on the y axis, therefore x is equal to 0। Put x is equal to 0 in this equation, so we'll get y is equal to 23/7, y is equal to 23/7। Now let R divides the PQ in the ratio of k:1। हमारे को ये निकालना है कि R जो है किस रेशियो में PQ को डिवाइड करेगा। तो R divides PQ in the ratio of k:1। सो 0, देखिए पहले तो हम R का कोऑर्डिनेट मालूम है हमारे को कि 0 होगा कब, जब y एक्सेस पर है तो x जो होगा 0 होगा, तो 0 लिख दिए पहले। और 1 इंटू -4 प्लस k इंटू 3 अपॉन k प्लस 1, इसको सॉल्व किया, 3k - 4 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब क्या हो गया, जो R पॉइंट है वो पी क्यू को 4:3 में डिवाइड करेगा। सो पी आर is to PQ RQ, PR is to RQ is equal to 4:3। This will be the answer. Now the second part of it, B part का second part, that is coordinate of R, that is 0, 23/7। पहले ही हमने वर्कआउट कर दिया है, 0 23/7 is the answer। Area of the quadrilateral PMNQ, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ। अब P का कोऑर्डिनेट मालूम है, साथ ही साथ Q का कोऑर्डिनेट मालूम है आपको। अब M का देखिए, अगर सीधे देखेंगे तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो -4 0, और N कहाँ पर है, एक्स एक्सेस इसके ठीक नीचे, तो 3, 0। मीन्स आपको चारों पॉइंट का, चारों वर्टिसेस का, क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मालूम है, -4 5, M -4 0, N 3 0, Q 3 2। अब हमने क्या किया है, देखिए -4 5 लिख दिया, फिर M का कोऑर्डिनेट लिखा -4 0, फिर N का लिखा 3 2, सॉरी Q का लिखा 3 2 और N का लिखा 3 0, और फिर वापस हम P का पर आएंगे। P का क्या है, -4, ये माइनस है, -4 5, -4 5 है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ये ट्रायंगल वाला दोनों चीज वहीं पर मिल गया है ना। ये -4 है। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए देखिए मैं 2 लाइन का इस्तेमाल किया हूँ, 4 to 0
जो लेफ्ट टू डाउन जा रहा है, लेफ्ट टू डाउन, ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में रहेगा, पॉजिटिव पार्ट में रहेगा, और इसके पहले माइनस लगेगा। जो लेफ्ट टू अप जा रहा है, लेफ्ट टू अप, ये सभी के पहले माइनस लगेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले चीज़ को समझ लीजिए। पहले आप ऐसे लिख लीजिए -45, -40, 30, 32, फिर -45। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ इज इक्वल टू 1/2, इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ा वाला जो ब्रैकेट कहते हैं हम, उसमें रखेंगे। उसके अंदर फिर लिखेंगे -4, देखिए -4 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 0, -4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, एक ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। उसके बाद फिर माइनस रखा, फिर दोबारा एक ब्रैकेट बनाया। अब ऐसे शुरू करेंगे 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4, 2 इंटू -4। अब देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 5 इंटू -4 दैट इज -20, और इधर -8 आ जाएगा। 2 इंटू -4 दैट इज -8। 1/2 बाहर है, 1/2 इधर भी बाहर रखा हूँ। अभी इसको 15 प्लस 6 21 -28, देखिए मैंने लिखा -20। अब 1/2 21 प्लस 28, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 28, दैट विल बी इक्वल टू 49/2, दैट विल बी इक्वल टू 24.5। सो 24.5 स्क्वायर यूनिट will be the area of the quadrilateral. Now come to the question number 10. Use the graph for this equations. Graph of the linear equation x and y passes through the point -1, -1 and b, that is 2, 5. From your graph, find the value of h and k if the line passes through H4 and 1/2 k। ए पार्ट में देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, देखिए ये बी पॉइंट है 2, 5 और ए पॉइंट है -1, -1। अब जब दो पॉइंट दिए हुए हैं हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू y माइनस -1 is equal to 5 minus -1 means y2 minus y1, x2 minus x1, फिर x minus x1, इसको सॉल्व किया। सो y plus 1 इक्वल टू 6/3 इन ब्रैकेट x plus 1, यहाँ पर x plus 1 हो जाएगा ये। अब ये y plus 1 इज इक्वल टू 2x plus 2, इसको फर्दर हमने लिखा 2x minus y plus 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे को दिया हुआ है h4। h4 इंडिकेट दैट 4 इज अ पॉइंट ऑन ए बी, दैट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है, 4 है y वैल्यू। तो हमने क्या किया, y के जगह पर देखिए h4 है, तो ये h4 किधर होगा, h4 तो 4 तो होगा y एक्सेस पर, और 4 होगा h होगा x एक्सेस पर। इज ए पॉइंट ऑन ए बी, तो ए बी के पर हमने रख दिया x के जगह पर h, y के जगह पर 4। तो 2 इंटू h माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो h इज इक्वल टू 3/2, h इज इक्वल टू 3/2। अगर आप यहाँ से 4 है ये ऑर्डिनेट, तो यहाँ से 4 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 3/2 पर ही आ रहा है, 1 और 2 के बीचों बीच। ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी यहाँ पर हमने h इज इक्वल टू 3/2 लिख दिया है। अब देखिए 1/2 के, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, k क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। इज ए पॉइंट ऑन ए बी। ए बी का इक्वेशन क्या है हमारे को,
2x minus y plus 1 is equal to 0. So 2 into 1 by 2 minus k plus 1 equal to 0. अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू 2. k इज इक्वल टू 2 आ गया. ये 1 है और ये 2 है. देखिए तो ये 1 नहीं है, ये 1 by 2 सॉरी हाफ है. इसका 1 और 0 और 1 के बीच में 1 by 2 लिया है, 1 by 2, और ये 2 पर जाता है. सो k इज इक्वल टू 2. यहाँ पर एब्सिसा जो है 1 by 2 है, x जो है 1 by 2 है. तो 1 और 0 के बीच का पॉइंट लिया है मैंने 1 by 2 और उसको रखा है, सब्स्टिट्यूट किया है सॉल्व करके मैथमेटिकली, यहाँ पर ग्राफिकली यहाँ पर दिखा रखा हूँ मैं. सो आपको k की वैल्यू मालूम हो गया, h की वैल्यू मालूम हो गया, इक्वेशन ऑफ ए बी मालूम हो गया. नाउ प्रोसीड फर्दर द बी पार्ट ऑफ इट. बी पार्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट. पहले मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है क्वेश्चन बी. फिगर दिया हुआ है, जो फिगर मैंने ड्रा किया है. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी निकालना है आपको. द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए पैरेलल टू बी सी, ये निकालना है. 2 पार्ट पूछा है क्वेश्चन में. देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर और इधर. सो क्या निकल गया? 2 3. बी से, बी का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया -1 और 2. सी से 3 0. सो इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाला तो y माइनस y1, y माइनस y1. बी का क्या है देखो, y माइनस y1, तो बी का हो गया y माइनस 2. y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1. सो y2 क्या है? 0 है और y1 क्या है? 2 है. तो हमने लिख दिए 0 माइनस 2. x2 क्या है? 3 है, -1 है. देखो 3 माइनस -1 और आगे लिखा है ब्रैकेट में x माइनस -1. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/4. इसको सॉल्व किया फर्दर, 1/2 आया. x प्लस 1 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -x माइनस 1. सो ट्रांसपोज करके लिख दिया हमने x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बी सी इज x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 विच पासेस थ्रू द ए, दैट इज 2 3. ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस लाइन का पैरेलल लाइन. सो हमारे को मालूम है कि x और y का टर्म एज इट इज रहेगा, केवल कांस्टेंट बदल ही होगा. तो उसके जगह पर हमने लेमडा रख दिया. लेमडा रखने के बाद हमने क्या किया, इसका देखिए मैंने लिखा है x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बी सी इज x प्लस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 विच पासेस थ्रू a, दैट इज 2 3. Therefore, I have substituted the value of a, that is 2 plus 2 into 3 plus lambda. Lambda is equal to -8. Equation of parallel line is x plus 2y minus 8 is equal to 0 or x plus 2y is equal to 8, and this is the answer of the question number 10 B part.